Hello friends, this is Team SuperSimplified and we are here with lecture number 6 in our new series which is 200 plus most important GS topics. And today's topic is sources of the Indian Constitution. So let us get started. And before coming to the provisions of the Constitution and their sources, let us have a background on the Constitution of India. So the Constitution of India was framed by the Constituent Assembly, and the Constituent Assembly adopted the Constitution on 26th November 1949. That is when the Constitution was ready, and it came into effect on 26th of January 1950. Right, that is why we celebrate our Republic Day on 26th January every year. Right, that is when it came into effect, and the time duration which was taken to formulate the Constitution, to frame the Constitution, was approximately 3 years. To be exact, it was 2 years 11 months and 18 days. राइट, सो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जो किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. राइट, एंड व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So this is the foundation of the constitution. This is also known as the blueprint of the constitution or the mini constitution. ठीक है, so क्या था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? So basically what was happening was in 1757 when the battle of Plassey was fought. After that the East India Company became very strong, and it was there till 1857, after which the rule was directly taken over by the crown, by the monarch. And during this entire period till 1947 there were a lot of acts which were enacted by the British rule in India to govern the country. Right, so this is one of the acts which came up in 1935 in that series. And this act is in turn based on the Simon Commission report, the round table conferences, the deliberation which was held during round table conference. There were basically 3 round table conferences which were held in London, and the third one is very important with respect to the Government of India Act 1935. And there were some white papers which were published in 1933, and there were some reports from the select committees. So ये चारों के basis पे Government of India Act 1935 जो है वो enact किया गया, and that itself became the foundation of the Constitution of India. और इसके जो कई सारे provisions हैं, जिसमें से 2 important provisions हैं वो अभी भी Constitution में आपको देखने को मिलेंगे. जो पहला है वो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. सो उसमें 2 हाउसेस का प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, द अपर हाउस एज अ परमानेंट हाउस एंड द लोअर हाउस विच विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 years. सो ये प्रोविजन आज भी है हमारे पास. राज्यसभा है विच इज़ अ परमानेंट बॉडी, एंड लोकसभा जो कि हर 5 साल में जिसका गठन किया जाता है. और दूसरा प्रोविजन जो था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो पहली बार ट्रू सेंस में किसी एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश रूल था वो लेकर के आई थी. राइट, और इसमें 3 लिस्ट का प्रोविजन किया गया था. प्रोविंस जो है उनको अपनी एक अलग सब्जेक्ट लिस्ट दी गई थी कि दे हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दैट, टू एग्जीक्यूट ऑन दैट. राइट, सो दैट वाज नोन एज द प्रोविंशियल लिस्ट. उसी तरह से एक यूनियन की लिस्ट थी जो फेडरल लिस्ट थी, आज उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं हम आज के करंट कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रोविंशियल लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों जो है वो अपने लॉज फ्रेम कर सकते हैं. सो दीज वर सम ऑफ द प्रोविजंस विच केम इनटू द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So these are the sources, and on the right side you have the features which were borrowed from there. Right, so we have the Government of India Act 1935 which is the major source of the Constitution of India, the blueprint of the Constitution of India. So the federal structure was taken from there, we have spoken about that. उसके बाद में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी हमने बात कर ली है, 3 लिस्ट की हमने बात की वहाँ पे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये जो सारा सेटअप है हम देखते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो आज की डेट में देखते हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही आई है मेनली. ठीक है, सो मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्रीज़ के नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, उसके नीचे बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं. सो दिस एंटायर सेटअप इज एक्चुअली एनविसाज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ड्यूरिंग 1935 एंड प्रायर टू दैट. राइट, और उसके बाद हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ. अगर यूके की बात करें तो वहाँ से क्या प्रोविजंस लिए गए हैं. तो पहला प्रोविजन तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग प्रोसीजर. ओके, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हर जगह नहीं होती है. जैसे यूएसए की बात अगर हम करें, सो वी हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर. ठीक है, बट वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म. तो इसमें क्या स्पेशल होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो जो पावर है 2 अलग अलग लोगों में कंसंट्रेटेड है. सो देर इज़ अ बैलेंस ऑफ पावर. और अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, दे विल आस्क क्वेश्चंस. Right, so there is a concept of only 2 parties in the USA. Unlike that in India you can have n number of opposition parties. Okay, और उसके बाद में है तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है लेक्स रेक्स. सी देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेक्स लेक्स और दूसरा होता है लेक्स रेक्स. रेक्स का मतलब होता है किंग और लेक्स का मतलब होता है लॉ. सो कई जगह पे क्या होता है कि किंग इज़ लॉ, किंग ने जो कह दिया या किंग ने जो किया वही लॉ है, और दूसरी जगह क्या होता है लेक्स रेक्स, यानी लॉ इज़ द किंग.
ठीक है. सो इन इंडिया देर इज अ रूल ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. द कंट्री इज नॉट गवर्नड बाय द मिनिस्टर्स और द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर, इट इज गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ, it is governed by the constitution, right? So constitution is supreme, so this is the rule of law and everyone is equal before the law. article 14 में ऐसा है. एंड सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है इंडिया में. कई कंट्रीज़ में डुअल सिटीजनशिप हुआ करती है, जैसे यूएसए में अगर आप टेक्सास में रहते हैं, सो यू आर अ सिटीजन ऑफ टेक्सास एंड यू आर साइमल्टेनियसली अ सिटीजन ऑफ यूएसए ऑल्सो. और उसी तरह से कई कंट्रीज़ में ये प्रोविजन भी है कि आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप तो आपके पास रहेगी, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन हैव अ सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री ऑल्सो. तो वो प्रोविजन इंडिया में नहीं है. यू कैन हैव ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप विच इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. और जो रिट है उसका प्रोविजन है इंडिया में. फंडामेंटल राइट्स के अंदर देर इज़ अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसके अंदर में रिट है, विच इज़ द पावर विच इज़ गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स, राइट. सो रिट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रिट को स्टडी करेंगे. सो 5 तरह के रिट होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड कोवरंटो, राइट. सो दीज आर द 5 रिट्स. नाउ लेट अस कम टू यूएसए. यूएसए से क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं? यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो लिया गया है वो है फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली हमारे: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट. सो दीज आर द राइट्स. उसके बाद में जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है वो भी यूएसए से लिया गया है. सो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोविज़न रखा गया है. सो पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन एंटिटी, इन वन पर्सन, right. So that is what is taken care in the constitution of India. So the judiciary can nullify any order by the legislature or executive if that order is in conflict with the constitution of the country. So Supreme Court or the judiciary is the custodian of the constitution, right. So if any provision of the government law or any ordinance or any executive order goes against the constitution, the spirit of the constitution, the fundamental structure of the constitution, then that can be nullified by the judiciary, ठीक है. एंड देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द रिमूवल ऑफ द जजेस. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा यूएसए से आता है. अभी यूएसए में चल भी रहा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट की प्रोसेस अभी चल रही है, राइट. एंड आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 4 टॉक अबाउट दिस रिस्पेक्टिवली. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैविंग अ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएसए. सो प्रस्तावना जिसे बोलते हैं, प्रीएम्बल, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार, पूरी समरी और पूरा एक स्पिरिट हमको बताती है कि व्हाट आर वी एक्चुअली इंटेंडिंग टू डू इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फॉर्मुलेटिंग ऑल दीज लॉज, ऑल दीज रूल्स, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, व्हाट आर वी अप टू, right. So that is what preamble talks about. So this concept is also taken from USA and written constitution का जो concept है वो भी USA से आया है. UK की अगर हम बात करें तो वहाँ पे written constitution नहीं है. इंडिया का constitution written constitution है और similarly USA में भी written constitution है. Then coming to Ireland. आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP विच आर प्रेजेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अकॉर्डिंग टू DPSP इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. सो कुछ गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए. स्टेट का मतलब नॉट स्टेट्स, स्टेट का मतलब सेंटर भी है, स्टेट का मतलब स्टेट्स भी हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ बनाती हैं. तो उनकी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें उनको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है कि उस तरह से लॉ फॉर्मुलेशन होना चाहिए और किस तरह का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारी पॉलिटी पे, हमारी इकोनॉमी पे उन लॉज का आना चाहिए. व्हाट इज़ अ डिजायर्ड इम्पैक्ट, राइट. सो दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. दीज प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, अदर इज गांधीयन प्रिंसिपल्स, देन उसके बाद में है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स. जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे DPSPs को तो उसको और डिटेल में देखेंगे. बट अभी आप ध्यान में बस इतना रखिए कि आयरलैंड से DPSP का कॉन्सेप्ट हमने लिया है और आयरलैंड ने लिया है वो स्पेन से. सो आयरलैंड बोरोड इट फ्रॉम स्पेन एंड वी बोरोड इट फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है. और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, दैट प्रोविजन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम आयरलैंड. 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा. 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा. सो दैट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड. उसके बाद में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसका जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द आयरलैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. देन कनाडा की अगर हम बात करें, सो कनाडा से जो प्रोविजंस आते हैं वो हैं द प्रोविजंस ऑफ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. सो सेंटर जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है स्टेट्स के कंपैरिजन में, और जब इमरजेंसी वगैरह का प्रोविजन लग जाता है तो ऑल सुप्रीम हो ही जाता है.
राइट. सो ऑल दिस प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम कनाडा. और रेसिडरी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास है. जो चीज़ लिस्टेड नहीं है हमारी तीनों लिस्ट में, उस पर अगर लॉ बनाना होगा तो दैट अथॉरिटी इज़ देयर विद द सेंटर. सो ये सारी चीज़ें हैं जो सेंटर को और पावरफुल बनाती हैं. द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा, दिस प्रोविजन. एंड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट. सो ऑल दीज प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम कैनेडा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ फ्रांस. सो फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो फ्रांस का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम पे ये जो प्रिंसिपल्स थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और इसको हमने भी बोरो किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ से हमने 3 प्रोविजंस लिए हैं मेनली. द फर्स्ट वन इज़ कंकरेंट लिस्ट एंड सेकेंड वन इज़ द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस. जॉइंट सिटिंग की हमने बात की थी. कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो एक जॉइंट सिटिंग कराई जाती है जिससे जो बिल है उसके ऊपर एक जॉइंट डिस्कशन हो सके और एक जॉइंट वोटिंग हो सके, राइट. एंड हु प्रिसाइड्स ओवर इन दिस जॉइंट सिटिंग? इट इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उनके एब्सेंस में द डिप्टी स्पीकर, और उनके एब्सेंस में द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी ऑस्ट्रेलिया से आया है. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यूएसएसआर की तरफ. सो यूएसएसआर से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच आर प्रेजेंट इन द आर्टिकल 51A. सो ये बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं बाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. और प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है, यूएसएसआर से आया है, सोवियत रिपब्लिक. और प्लानिंग कमीशन अब स्क्रैप कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब है उसकी जगह पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग. और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. भारत का संविधान जो है उसको संशोधित करने की जो प्रक्रिया है उसको हमने लिया है साउथ अफ्रीका से. और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव, उसकी प्रक्रिया जो है वो हमने उसको भी लिया है साउथ अफ्रीका से. और जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी से जो प्रोविज़न हमने लिया है वो है एमरजेंसी पावर्स ऑफ द सेंटर. एमरजेंसी लगाने की जो पावर है सेंटर की वो हमने ली है जर्मनी से. एंड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी. सो दिस प्रोविजन हैज़ कम फ्रॉम जर्मनी. दिस emergency provisions and the powers of the center we have discussed in one of the previous lectures. If you have not watched that, you can just go through that particular lecture. So these were some of the most important features of the Constitution of India and the sources from where they have been borrowed, right? So that's all guys, that's all for today. We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.